Hip hop, a misunderstood term to majority. Some relate to it as club music, some dancing, some absurdity, and to some, it's an entire spiritual process. Let me tell you the story outlined by the youth of Odisha. Their journey from being hustling as underground artists to the stage of fame and success. Hip hop basically is an umbrella term that comprises of MCing, commonly known as rap, DJing, graffiti, breaking, and beatboxing. Hip hop artist KRS-One says, hip is to know, it's a form of intelligence. To be hip is to be updated and relevant. Hop is a form of movement. You can't just observe a hop, you gotta hop up and do it. Hip and hop is more than music. Hip is the knowledge, hop is the movement. Hip and hop is intelligent movement. Through cultural exchange and introduction of Western concepts, Odisha saw the initial start of hip hop dance. Harihar Dash, Amit and Sam, United Dancing Twisters, Divine Tor Crew were common heard names in Odisha when it came to hip hop. To the artists, hip hop meant the whole world. It empowered them. Their body movements wrote stories on music, the stories of the unexpressible pain, happiness, brotherhood, and social causes. With music booming in ears, sweat drenched t shirts, often crews or friends came together to dance and share or exchange their knowledge to what we call as cipher. With the success of Harihar Das and a national and international level, masses started taking interest in the art. B-Boy Cyrus, currently a doctor at AIIMS Raipur, represented Odisha at a national battle and won it, and that had b-boying heads around India turned towards Odisha. Thereafter, Android Crew went on to represent India at KOD, South Korea, and Abhinav Singh represented India at World Crumb Finals, Dusseldorf, Germany. Android Crew thereafter has been actively taking initiatives to spread the culture through ciphers and battles and representing Odisha at national battles. Meanwhile, Vigorix Crew geared up at Cuttack. Elements of hip hop like beatboxing, graffiti, DJing, and MCing or rapping began picking up their pace. Odisha witnessed ciphers like Utkal Cipher and Street Katha, which connected rap artists across Odisha. With this, Odisha had begun to rock and bounce to the melodies of hip hop. Rappers like Ustad, Sade Sat, Genesis, Escape, JRM, Chota, MC Tor, and many others leveled up the game through YouTube with producers like Ashish Mishra, Guneet, AVI 60, Guruji, and others. Hello, what's up? My name is Atish Mahapatra and I'm known as B-Boy Cyrus in hip hop scene. I represent Divine Talk Crew and Breakthroughs Crew in hip hop jams, and I've been breaking since 2010. Apart from living this hip hop life, I am professionally a doctor. I have completed my MBBS from VSS Medical College, Burla Sambalpur, and I'm currently pursuing MD in AIIMS Raipur. For me, hip hop is the way I live. It gave me a new life. I was a timid kid who would be shy for doing anything. I was underconfident all my life, but then hip hop came into my life, dancing specifically. I didn't know that this b-boying was under hip hop at that time, but dancing came into my life and it completely opened me up as a person, and I'm really grateful to everyone who introduced me to this dance form. So that was the beginning, and then I kept on thinking about this dance form b-boying, and I got to know that it is under hip hop, which is actually a culture. So even without knowing actual hip hop, I was living hip hop. I was wearing that attire, which would be cool, and I was carrying the mentality that I have to be optimum confident and I have to perform well in everything I do. I have to learn. For me, hip hop is
is more about knowledge, it's more about education. So I kept on learning new things, not just dance. It can be a book, it can be a novel. So my mentality of hip hop is very different than others. I feel for me it's all about learning and keep on learning. It's not because it's just about learning and keeping my mind cool and calm and just to be a better version of myself. So we all know hip hop has like four basic elements. That is, one is dance, the other is music, graffiti, DJing, and many more. But for me, the most important element of hip hop is knowledge. So how much I gain from it, with time new elements will be added. But I think knowledge is the most important element in hip hop. So hip hop. I feel like I live hip hop every day. My achievements aren't much because all my life, I have to pursue MBBS and managing both studies and this dance was quite difficult in terms of participating in national jams or state level jams. But whenever I used to participate, I had in my mind that in a year I'll take out time and participate in 3 to 4 jams. And I kept preparing well for those jams, just like I keep preparing for exams. I used to make notes, I used to have sets notes, and I used to go to those national jams and make an impact on those jams. And people started recognizing me as a Dr. B-boy who can rock the stage, who has top rock quite good to be to make an impact in a hip hop jam or in a hip hop scene. So my greatest achievement till date was in 2015 when I won the top rock battle in Blame It on the Boogie. So it was out of chance, I think. I was not the best out there, but I just kept on going with the music. I have participated in very few jams, but thanks to Almighty that many people still trust me as a b-boy who can judge well in jams. To be frank, I have judged more jams than I have participated, I think. But yes, I am a cipher cat and I keep on ciphering, I keep on gaining knowledge. For me, just like I said before, I keep on bragging about knowledge, but please, this thing is something which is the most important. हाय, मैं हूँ सैम्यूल हाय, मैं हूँ राहुल और हम बिलोंग करते हैं क्रिएटिव क्वेश्चन डांस स्टूडियो को एंड इट्स बिन क्वाइट सम टाइम हमने ये शुरू किया है और वैसे कुछ खास नहीं है हमारे जर्नी के बारे में, लेकिन हमने स्टार्ट किया था डांस अराउंड 10 years ago। मी और मेरे एक पार्टनर है अमित, जो फिलहाल आज है नहीं फाइट्स के लिए। तो हम लोगों ने कॉलेज में शुरू किया था, काफ़ी लेट शुरू किया था। हमने कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत शुरू किया, फिर बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया हायर स्टडीज़ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लेकिन पैशन एक कीड़ा था, तो इसमें वापस आए हम लोग और सबसे हमारा ये डांस कुछ ना कुछ करके हमने जारी रखा है। फिर हमने अपनी जॉब्स छोड़ दी और कुछ टाइम के लिए सिर्फ कॉम्पिटिशन्स, लोकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ट्राई करते थे। उसमें वैसा कुछ खास हुआ नहीं और उसके बाद हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि जॉब छोड़ने के बाद हम लोग डांस स्टूडियो अपना बनाएंगे। इस साल मिला के करीब 4 साल हो चुके हैं डांस स्टूडियो को। पैंडेमिक के भी टाइम पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो या इट्स बीन लिटिल डिफिकल्ट बट वी आर गेटिंग बाय। और राहुल हमारे साथ ज्वाइन किया 2016 से राहुल हमारे साथ है, इंस्ट्रक्टर है और एक जन भी इंस्ट्रक्टर है जो आज है नहीं। तो बेसिकली हमारा स्टाइल ऑफ डांस है कोरियोग्राफी, मतलब
आप इसको एक अप्रोच कह सकते हो, ये पर्टिकुलरली एक स्टाइल नहीं है, लेकिन कहा जाता है क्योंकि मतलब बस ट्रेंड में है। तो पहले हम लोग पॉपिंग और एनिमेशन करते थे थोड़ा बहुत, फिर फ्रॉम दैट वी हैव इवॉल्व्ड इनटू क्रिएटिंग, या बॉलीवुड भी करते थे, वी हैव इवॉल्व्ड इनटू डूइंग आवर ओन स्टाइल एंड यू नो इधर उधर से सीख के अपना कुछ ना कुछ बन गया है। चल रहा है कुछ ना कुछ करके और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चों का इतना ट्रेनिंग हो नहीं रहा है। एक मतलब आशा है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनको लेके कोई बड़े इंडियन प्लेटफॉर्म पे खड़ा करे और उनको जिताए। और एज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हम लोग सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब डांसर्स फ्रॉम द स्टेट। वैसे कुछ खास वायरल लेकिन है नहीं, तो टाइम टू टाइम हम लोग का अपलोड चालू रहता है। सो या वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट दिस जर्नी इज गोइंग ऑन। थोड़ा लेट शुरू हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त। सो या एंड ये टीम जितना बढ़ सके आगे और नया नया काम कर सके उस चीज़ का उम्मीद है। डांस एजुकेशन में कटक में कुछ बदलाव लाए हम लोग, सिखाने के तरीके से जो सिखाया जा रहा है उस एस्पेक्ट से, और जैसे सिखाया जा रहा है कैसे सिखाया जाए उसको लेके जारी रहेगा, गॉड विलिंग। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट एंड थैंक यू। Hey, this is Vigor X Crew from Cuttack, Odisha, और मैं हूँ पॉपिन दिव्या, फाउंडर ऑफ Vigor X Crew, and This is Popin Jaren and from India. This is Vicky. This is from this side. तो बेसिकली हमारे अचीवमेंट्स अभी है कि हम लोग दोनों जगह काम कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रीट में भी है, हम लोग कमर्शियल में भी है। हम लोग स्ट्रीट में भी है, काम कर रहे हैं, हम लोग कमर्शियल वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ में, और साथ में कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा बात है। हर लाइन में हम लोग साथ में हिप हॉप के साथ जुड़ के कमर्शियल को भी और स्ट्रीट को भी हम लोग दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे टीम के लिए। देखा जाए तो हिप हॉप की वजह से आज विगर एक्स क्रू है। अगर हम लोग सब एक साथ कनेक्टेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिप हॉप, हमें एक ही चीज़ जोड़ता है, वो है हिप हॉप। हम लोग सब काम भी उसी के रिलेट कर रहे हैं, कुछ भी करें उसी की वजह से मैक्सिमम काम हमको मिला। एक्चुअली हम लोग का इम्पैक्ट है, जो भी हम लोग को काम मिल रहा है इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ हिप हॉप। हम लोग जहाँ भी है, स्ट्रीट में है या कमर्शियल में, हम लोग एक ही चीज़ पे फोकस हम लोग एक साथ जोड़ के रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे क्रू पे है और हमारा विजन ये है कि उड़ीसा में और सीन बढ़ाएं, कटक में और सीन बढ़ाएं। हिप हॉप को भी मतलब जो बच्चे हैं अभी उनको बॉलीवुड वगैरह का इतना नॉलेज है, उनको हमेशा वही सीखना है जो वो देख रहे हैं, बट हिप हॉप के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पेरेंट्स लोग को मेनली हर लोगों को इतना थोड़ा नॉलेज हो हिप हॉप के बारे में कि कुछ है। तो अभी सबको यहाँ पे नहीं पता है क्या है हिप हॉप, क्या चीज़ है, जो देखते हैं वही सब है। तो विजन है कि कटक में बेसिकली कटक में हिप हॉप का सीन और ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है। एक लोग कमर्शियल में भी हिप हॉप ऐड हो रहा है, अभी रिसेंटली ऐड होना हुआ है क्योंकि हमारे क्रू की तरफ से स्टार्ट हुआ है। वो फर्स्ट हमारा पुश था, तो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है अभी और कोशिश कर रहे हैं हिप हॉप को और आगे ले जाए। उड़ीसा का सीन हिप हॉप में अभी बाहर और जाएगा, अभी जा रहा है और भी जाएगा। हमारा क्रू का यही विजन है। क्रू का नाम उड़ीसा में अभी बहुत मेरे भुवनेश्वर कटक में है, बहुत है, काफ़ी जगहों में है, बट एक अचीवमेंट हम लोग को चाहिए कि पूरे इंडिया में जाने की हाँ विगर एक्स क्रू है, तो क्रू है। हम लोग रिसेंटली पूरे कल्चर में भी हमारा वीडियो पोस्ट हुआ था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे क्रू के लिए। उड़ीसा से मुझे लगता है हम लोग बहुत अभी रिसेंटली हमारा वीडियो पोस्ट है, क्रू का पहला वीडियो किया, तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे। छोटे छोटे अचीवमेंट्स हमारे क्रू के, अभी कोई इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं किया हम लोगों ने, बट हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे और एक ना एक दिन पूरा उड़ीसा तो जानेगा ही, पूरा इंडिया भी पता चलेगा ये क्रू है, विगर एक्स क्रू करके ये क्रू है सब डांसेस को। बेसिकली हमारे क्रू में सब अलग अलग डांस फॉर्म से है,
पॉपर्स भी है हमारे क्रू में, मेनली फोकस उन लोग पॉपर्स है, वो लोग मेनली बैटल में भी फोकस कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी फ्री स्टाइलर्स है बहुत सारे, और जो है कि अब हिप हॉप और बॉलीवुड को भी कंबाइन कर रहे हैं हम लोग। उसके साथ अलग अलग फॉर्म के डांसर्स भी है, बट सब हिप हॉप में ही इन्वॉल्व है अभी। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज बिगर एक्स क्रू, पीस आउट। Hello everyone, this is Manas Naik representing Android Co India, and I'm a dancer from Puri, Odisha. I've been doing this since I was a kid, but I started professionally in the year between 2013, 12 and 13, जब मैं आशुतोष किडबिस्ट एंड आदर्श मिश्रा एडिक्शन से मिला। एंड द फन फैक्ट इज़ हम लोग उस वक्त मिले थे टू फेस ऑफ ईच अदर, क्योंकि कुछ स्कूल के बच्चों ने हमारे मतलब एक दूसरे को चैलेंज कर दिया था कि वी हैव बेटर डांसर दैन यू। सो वी मेट एट अ प्लेस कॉल्ड गांधी पार्क। वहाँ पे जब मिले हम लोग ने फेसअप किया, उन्होंने अपनी चीज़ें किए, आई डिड माई थिंग्स। देन एट द एंड ऑफ द डे वी डिसाइडेड के आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लाइक वी आर ऑन द सेम पाथ, हम लोगों को सीखना है। क्योंकि उस वक्त इट वाज न्यू फॉर पूरी, हिप हॉप तो था ही नहीं। एंड सो उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुआ। वी यूज्ड टू प्रैक्टिस एट गांधी पार्क एंड द मेन सोर्स ऑफ लर्निंग वाज यूट्यूब। हमने यूट्यूब से ही सीखा, लाइक वी रिसर्च थिंग्स एंड वी यूज्ड टू शेयर इट विथ ईच अदर एट गांधी पार्क ओनली। फिर धीरे धीरे वहाँ से हम लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स हम लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। वी वेंट फॉर वर्कशॉप्स, कॉम्पिटिशन्स एंड बैटल्स। एंड धीरे धीरे हम लोग अच्छा कर रहे थे, लाइक लोग हमको जानने लग रहे थे, लाइक लोग जानने लगे थे कि कुछ बंदे आए हैं जो ये स्टाइल कर रहे हैं। यस, आई रिमेंबर वन डे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट समथिंग ऑन यूट्यूब, आई केम अक्रॉस ए वीडियो, अ हाउस डांस वीडियो, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, आई ट्राइड टू फाइंड मोर वीडियोज़। फिर मैंने सोचा कि करना तो यही है, लाइक मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे फुटवर्क्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं टॉप रॉक्स वगैरह करता था। फिर मैं कुछ भी हो, मुझे फुटवर्क्स बहुत ही पसंद है। तो मैंने इस स्टाइल के बारे में थोड़ा जाना, फिर रिसर्च किया, फिर मैं इसको करने लगा। एंड उस वक्त ये था कि बहुत ही कम लोग जानते थे इस स्टाइल के बारे में उड़ीसा में, और देयर वर वेरी लेस पीपल हु वेर डूइंग दिस। सो मैंने ये किया। फिर उसके बाद मेरा लाइफ बहुत चेंज हुआ, क्योंकि जब मैं करने लगा, मैं ठीक ठाक कर रहा था, फिर मैं थोड़ा रिप्रेजेंट करने लगा उड़ीसा को, मैं ट्रैवल करने लगा टू लर्न मोर अबाउट दिस स्टाइल। सो धीरे धीरे लोगों ने मुझे जाना, पहचाना। फिर इससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई, कि फिर मुझे इनवाइट्स मिलने लगे फॉर वर्कशॉप्स, फॉर जजिंग एंड ऑल। सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन हाउस डांसिंग, और अभी भी चल रहा है, क्योंकि इस चीज़ ने मुझको बहुत कुछ दिया। एंड मेरा वही मानना है कि जो तुमको फील देता है वही करो। ये नहीं कि जो ट्रेंड में चल रहा है, कि जो कोई और कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, इसको फेम मिल रहा है तो मैं वो करूँगा, वैसा नहीं है। जिस चीज़ में तुमको फील मिलता है, जिसको करने में तुमको अच्छा लगता है, वही करो। सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा है कि ये तो ट्रेंड में नहीं चल रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, यू कैन जस्ट ट्राई समथिंग एल्स जो ट्रेंड में है। बट इट्स ऑल अबाउट फन। मुझे इसको करने में फन आता है, मुझे इसको करने में मज़ा आता है। सो आई एम कंटिन्यूइंग इट। एंड अभी इसके वजह से बहुत चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। सो अभी ये मेरे लाइफ से पूरी तरह से जुड़ चुका है। अभी कुछ भी हो आगे जाके फ्यूचर में, बट आई एम स्टिल गोना डू दिस। चाहे मैं कुछ और भी करूँ, बट हाउस विल ऑलवेज बी देयर। सो वैसे ही मैंने ग्रो किया, लाइक यूट्यूब से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे ट्रैवलिंग किया, और फिर धीरे धीरे जाके हम लोगों ने ये चीज़ ठीक से जाना। एंड टुडे इट्स ईजियर फॉर लाइक पीपल इन ओडिशा, क्योंकि यहाँ पे सबको ईजीली सब कुछ स्टाइल अवेलेबल है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया तब कुछ था भी नहीं, हमको सीखना होता था, यूट्यूब ही था एक सोर्स, या फिर बाहर जाना पड़ता था। अभी ऐसा है कि अगर आपको कोई स्टाइल सीखना भी है तो बहुत सारे बंदे हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्टाइज है। मतलब पर्टिकुलर स्टाइल में आपको पॉपिंग सीखना है तो पॉपिंग के लिए भी है, आपको हिप हॉप सीखना है तो हिप हॉप के लिए भी है, और हाउस सीखना है हाउस के लिए। मतलब कोई भी स्टाइल आपको सीखना है, यू कैन गेट इट ईजीली इन ओडिशा। सो राइट नाउ वही चीज़ है कि आई एम हैप्पी कि एक जर्नी स्टार्ट हुआ था, लाइक जिसकी वजह से ऐसा उड़ीसा में स्प्रेड हुआ चीज़। एंड थैंक यू।
Hello, this is Dev Jyoti, aka Bobbin Panda, representing Android Crew, Punk Machine and House of Karma. मैं बरहमपुर उड़ीसा से हूँ and I'm a professional dancer, a choreographer, a performer, like full time in dance. And मैंने अपना dance का journey like start किया था at the age of 7 and like still going on. और मैंने बहुत सारे underground dance like underground battles, stage competitions and ODI reality shows जीते हैं. And the most important part, like मेरे life का सबसे important part जिसको बोलते हैं, like back in 2013 मेरे बड़े भैया like महेंद्र भैया जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था हिप हॉप कल्चर के मतलब हिप हॉप कल्चर के बारे में, उन्होंने मुझे पॉपिंग सिखाया है एंड उन्होंने मुझे स्ट्रीट स्टाइल के बारे में बताया एंड उन्होंने हिप हॉप नॉलेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताए लाइक एवरीथिंग जो भी है लाइक एलिमेंट्स हो या कुछ भी हो, हर चीज़ के बारे में उन्होंने मुझे बताया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम बिकॉज उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ एंड आई जस्ट वांट टू से दैट लाइक इट्स लाइक हिप हॉप हैज़ सेव्ड माई लाइफ एंड मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ इस चीज़ को लेके एंड आई जस्ट वांट टू से दैट थैंक यू टू माई मेन लाइक roommates, my family, my fans and my students also. So thank you so much for supporting me and keep pushing me always. So thank you so much and peace out. I started dancing in 2001, but I got my fame, I got my success when I went to India's Got Talent. I was the finalist there and that was in 2010. Since then, my life has changed and I've been one of the members of Cirque du Soleil. I was in Las Vegas for 2 years. I was a part of a production house, a Cirque du Soleil production called Love the Beatles, and I've done movies and I own a dance studio. I train people now. I train people who want to learn dance. Basically, I train in my style, which is locking and popping, but I do other styles as well, which is hip hop and house and other street styles. For me, hip hop is more than a music or more than a dance form. Hip hop is a culture which actually binds a lot of people. Especially, I really love hip hop because hip hop gives you a lot of space, a lot of freedom for your creativity. If you really want to do something, you can do that in hip hop. You can express yourself well. Unlike other dance forms, which has got a lot of restrictions, a lot of rules around it, hip hop doesn't have a lot of rules. There are just basic moves, and you can actually create a lot of things out of it. You can create your own signature. You can create your own style. It is born in streets and anyone can actually do hip hop. That is the beauty of it. Anyone can come and give their original thoughts, original expression, original move. That's why that is the beauty of hip hop. Hip hop has started in the early 60s and now it is 2010. It's already been more than like 50 years. And a lot of artists has come, a lot of artists has given a lot of things to hip hop. Especially I'm talking about like hip hop dance because I am a hip hop dancer. A lot of moves. Originally we started from breaking. Then a lot of other dance forms actually got into the culture. There is popping, there is vlogging, there is ground. There are a lot of styles. So hip hop has actually evolved a lot since the beginning of the dance form. And the thing is, the best part is it still keeps growing. It still keeps going. A lot of dancers are getting into this. A lot of youth actually are coming into this, and they are coming with their originality. They are coming. They are actually bringing their own style into it, they are bringing their own culture into it, and now it has become
an exchange of culture, exchange of creativity, exchange of like freedom, exchange of expression. So now this has become a big community. So I think like hip hop has actually pretty much evolved a lot, and I think it has got a lot of potential also in the future to evolve more. I started doing hip hop in late 2004 and early 2005, and it has actually impacted me in a lot of ways, in a positive way, because actually I won't be wrong if I say like where I am today is mainly primarily because of hip hop dance, because I started in 2004. I started like breaking, but later on I moved completely towards popping and locking and other dance from other street styles. But my training, my breaking training, my hip hop training has been like always crucial. It gave me a lot of concepts to think about. It gave me a lot of ideas. It made me different. It made me who I am. It made me explore myself. And back in 2004, 2005, no one actually knew what hip hop was. I was the first generation hip hop dancer in Odisha, and one of the first hip hop generation dancers in India. So there was an advantage that no one knew. So this time was something new, and I just learned the basics, and I was moving. So I got a lot of attention. I got a lot of opportunities because of this. Now hip hop has grown bigger, and a lot of people are there. I'm sure they're facing a lot of competition, but that was the advantage for me, that I didn't have much of competition. But again, there was not much awareness. But now there is a lot of awareness, and a lot of people are doing it. There is a community, huge community. So since one of the founder members, I've enjoyed the privilege of being one of the first generation hip hop dancers, and it has impacted in a lot of ways, in a lot of positive ways. So I think that phase where I learned hip hop, when I got to know about hip hop, that was a crucial phase and one of the best phases of my life. After India's Got Talent, you went to USA, and tell something about your dance experience. About my achievements, the big break for me was India's Got Talent. Then I did a commercial, Airtel commercial, which was international commercial. Then I went to Cirque du Soleil. I was the first member, first Indian to get into Cirque du Soleil. 30 years of history of Cirque du Soleil, and I was the first Indian. That was a great achievement. I had a lot of people, I met a lot of talented people over there. I learned a lot, and currently I'm back to India. I have my own dance school, Divine Music and Dance Academy, and now I'm running another dance academy, Leaps on Beats, with my partner, and so I'm training people. With what experience I had, what the kind of training I had. So that's pretty much my journey is all about. Hey guys, hello, what's up? It's Sivram, aka Escape, aka Mr. Grumpy here. I am a rapper and a producer and a beat maker from Bhubaneswar, Odisha, and this is my story. So I got into hip hop back in 2012 when I first started listening into a lot of rap songs, a lot of hip hop songs. There was a lot of artists that I started listening to. One of them was Lil Wayne, and he's one of the first artists that I ever started listening to, and who really inspired me to get into this thing. So Lil Wayne and Busta Rhymes, there was Akon, Flo Rida, Eminem, a lot of kind of guys that I used to listen to, and it was really interesting to me, and I really loved listening to all the rap songs and all. So
So it was not until 2017 that I started writing my own lyrics and building on to write on a full verse or something. And it was not about until about 2018 that I really started rapping, that I converted my lyrics into a song and really recording it into a microphone on a beat and making it a whole song. So 2018 was the year for me. And really what inspires me to do hip hop is really it's just an expression, right? You express what's on your mind, you really say what you want to say, otherwise you couldn't say, right? You could not say those things in a normal conversation. So hip hop is the music is a really great way for me to express my feelings and my thoughts, my ideas, the things that I want to convey to the people, you know, to the listener basically. So, and again, yeah, it was around 2018 where I first started making beats in FL Studio. I didn't know anything about that. I just started experimenting. I started watching a lot of tutorials which really helped me through the process how to make the beat sound good. At first I used to make like trash beats, man. It was like it took me around a year to make good beats, listenable beats. So there's that. And so till this day I make beats, I mix and master my songs, my own songs. I do those and I keep learning. Each step, each song is a way for me to, it's like a stepping stone. Like I keep learning as I go, up and up and up, and just like that. So that's my story. And my first track, Hustle Jari, was released back in 2019 with Genesis. And I have like 3 tracks released on YouTube till this day, but I have a lot of tracks that I'm working on and almost they are finished, so a lot of music is gonna come soon, so I'm excited for that. I really like appreciate you guys. It's really great. Thank you. Peace. Hey. 24 घंटे हसल जारी, शब्दों से यारी लिखने की बीमारी, रुकना नहीं मुड़ना नहीं हमको जरा भी, straight out of Bhubaneswar city है अब अपनी बारी. Hi, my name is Santosh, aka Genesis. I'm a rapper from Bhubaneswar, Odisha. By profession, I'm a software engineer working for TCS Bhubaneswar. So, rap music as a journey began for me in 2010. मेरे एक दोस्त ने मेरे को Eminem का एक गाना सुनाया था. गाने का नाम है Insane from his album Relapse. और उस गाने को सुनने के बाद मानो एक नई दुनिया के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए खुल गए. उसके बाद मैंने एमिनेम का रिकवरी एल्बम भी सुना 2012 जब मैंने बीटेक शुरू किया अपना. सो उस दौरान मैंने एमिनेम के पुराने प्रोजेक्ट्स भी सुने, मास्टर मैथर्स एलपी, एमिनेम शो, ऑनकोर. उसके बाद आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट्स, लूडाक्रिस, लिल वेन, बस्टर राइम्स, टेक9. मानो एक नया यूनिवर्स मेरे सामने एक्सपोज हो चुका था. And 2014 is the time when I first started writing my own rap lyrics. इसके पहले मैं बस rap lyrics को memorize कर लेता था and I used to perform them in front of my friends and like they used to go crazy. But दिल में हमेशा से एक कमी सी खलती थी कि हाँ कब मैं खुद के lyrics लिख पाऊँगा. And that opportunity was given to me by Anurag, my friend. One day he came to my room and he said, भाई एक rock band form करना है and I want you to rap for us. And I took it up as a challenge. And to be very honest, the first rap verse that I wrote, it sucked a lot. But that's that. उसके बाद से मैंने कभी मुड़कर देखा नहीं है. I have been the biggest critic of myself as well as खुद को appreciate भी करता हूँ whenever it's due. Shout out to Anurag, Pratik, Arnab, Mukesh, Anish, Sudhanshu. You guys have helped me a lot to evolve as an artist. Just in case you guys are wondering who are these people, these were my band members. The name of my band was Acoustica. तो हम लोग आइडिया ये था कि बॉलीवुड के 90s 80s के रैप रॉक सॉन्ग्स को हम लोग रेट्रो सॉन्ग्स को हम रैप रॉक फॉर्मेट में प्ले करते थे. Beg your pardon for the fumble. So that is how my journey as a writer began. 2016 was a time जब मैं और मेरा दोस्त एक्सकेप हम दोनों ने TCS हैदराबाद एक साथ ज्वाइन किया. एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम वी वर रूममेट्स
हम यूट्यूब से बीट्स डाउनलोड करते थे, उस पर लिरिक्स लिखते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, एक दूसरे की खामियां खूबियां निकालते। लाइक इट वाज अ प्रोसेस ऑफ सीइंग ईच अदर ग्रो इन फ्रंट ऑफ आवरसेल्व्स, राइट? सो that kind of stopped for me in 2018. I had to come back to Bhubaneswar, my hometown, and I would admit it was a really dark phase of my life, 2018. But that is also what gave birth to the rapper persona Genesis. Genesis, as the name suggests, is the beginning of everything. हिंदी में जिसे कहते हैं उत्पत्ति. So इस दौरान I used to put out all of my frustration, all of my anger into my verses. मैंने उस वक्त रिलीज़ करना भी शुरू नहीं किया था गाना. So I just used to write them, you know. मैंने सोचा कि हाँ, if something has to be done, it has to be done now. So the following year, 2019, was a year of achievements for me. Year of achievements of sorts बोला जा सकता है. Because it was the year where when I released majority of my music, and it was the year when New Indian Express and Dharitri they published an article on me. They helped my music reach out to wider audiences. Shout out to Seema Rajpal from New Indian Express and Sashmita from Dharitri. You guys have been doing this for a lot of artists in the scene. So you guys definitely deserve a shout out. Shout out to all the real artists in the game. Blowith, Escape, Chota Ojha, Tanmay, Ustad, and please forgive me if I have forgotten some names. Right? Shout out to Red Bull. They have been doing a lot for the scene, conducting cyphers, rap battles, and just last year they conducted Red Bull Spotlight event, hosted for the first time in Odisha. Shout out to Big Deal, shout out to J-Trix. These guys were the judges at the Spotlight event. So we still have a lot to go, and what I think is the hip hop scene deserves a lot of input from us. So I'm just trying to put my best foot forward, and I'm taking my own time, but making sure that I put out quality over quantity. So that's that from me. Peace out. नमस्ते, मेरा नाम है रैपर छोटा ओझा AKA विश्वजीत ओझा। मैं उड़ीसा के एक छोटे से शहर तालचे से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक छोटा माइनिंग सिटी है, माइनिंग टाउन है, और कोयला नगरी जिसे हम कहते हैं, उड़ीसा की कोयला नगरी है। और यहाँ से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ है। मैंने अपने ग्रेजुएशन ख़त्म किए ट्राइडेंट एकेडमी ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से, और BBA मैंने कंप्लीट किया वहाँ से इसी साल 2020 में। मेरी जर्नी जो है वो, मैं अगर इफ़ आई रिकॉल, वो सबसे पहला रैप जो मैंने सुना था एमिनेम, ऑफ कोर्स। क्लास 5 या 6 में मैं था जब स्मैक दैट मैंने सुना था। एक कौन का गाना था फीचरिंग एमिनेम, फ्लो एंड लिरिक्स, सबसे पहले चीज़ उस एज में जो कि मेरे को जो कि हिट कर गई, जो कि मुझे एकदम मंत्रमुग्ध हो गया मैं उसमें एकदम, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं सुना था। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था उसे रिसाइट करने में, उसे वापस से अपने मुंह में बार बार उसके लिरिक्स को बोलने में मज़ा आ रहा था, वो फ्लो में करने के लिए मज़ा आ रहा था। वो चीज़ वहीं रह गई, वो कहीं अंदर थी, रह गई। मैं गाने वाने सुनता रह गया। मेरे गाने के टेस्ट काफ़ी अलग तरीके से, काफ़ी वैरायटी वे में म्यूज़िक मेरा जो है डेवलप कर गया। रॉक से लेके ट्रैप से लेके, मतलब कि एकदम ओल्ड स्कूल रॉक मेटल से लेके मैंने एकदम EDM तक सब कुछ मैंने कवर किया। सब कुछ ही मुझे सुनने में मज़ा आ रहा था। हिप हॉप स्पेशली कब मुझे हिट किया, वो जब मैं 11th में था, और तब वो एक दौर था जब थग लाइफ था, और थग लाइफ के बारे में पता चल रहा था। थग लाइफ बहुत ही एकदम हिट मीम था उस वक्त में, और सबको थग लाइफ के बारे में जानना था। और मेरे को भी उसी वक्त ही मुझे एमिनेम भी हमेशा अपने गानों में टुपाक के बारे में बोलता था, लेकिन कभी अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं आई थी कि कभी मैं टुपाक के बारे में रिसर्च करूं। तो थग लाइफ टुपाक का जो नारा था, टुपाक मैकियावेली, टुपाक शाकुर, वो वेस्ट कोस्ट के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में, वो लॉस एंजलिस बेस्ड रैपर थे, न्यूयॉर्क से थे। वो लेजेंड उनको कहा जाता है, रैप कल्चर का लेजेंड उन्हें कहा जाता है। और
उनके बारे में जब मुझे पता चला, वो जो है होली बाइबल या होली ग्रेल जो भी, वहाँ से मुझे पता चला वो जो आइडिया था एक देसी हिप हॉप का बहुत ही मेस्ड अप आइडिया था। अपब्रिंगिंग वैसे जिस तरीके से म्यूज़िक, उतना रिसर्च कोई नहीं करता था, बस गाना सुनते थे, अपने आप से जो आइडियाज़ बिल्डअप होते थे उसी हिसाब से हम लोग अपना परसेप्शंस बनाते थे। और हनी सिंह था उस वक्त, रफ्तार था। हनी सिंह को रैपर, कुछ लोग बोलते थे रैपर नहीं है या पॉप रैपर है या कुछ था, या बादशाह असली रैप नहीं करता है, या बादशाह लिखता नहीं है। फिर लिखने के ऊपर था कि कुछ अच्छा लिखना है, ख़राब लिखना है, ये भी होती है चीज़ें। और बहुत सी चीज़ें थी, मेस्ड अप चीज़ें थी, कुछ समझ में नहीं आता था। जब टूपाक के बारे में पता चला तब जाके सब चीज़ क्लैरिटी में आई कि हिप हॉप क्या चीज़ है, हिप हॉप की ओरिजिन क्या है, किस तरीके से वो इंटरनेशनल वे में ग्लोबलाइज हुई, किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट आर्टिस्ट विथ डिफरेंट परसेप्शंस, डिफरेंट मेंटालिटीज, डिफरेंट थिंकिंग उसको अपने तरीके से किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है रैप। और इसी तरीके से मुझे पता चला धीरे धीरे, फिर मेरे अंदर वो चीज़ तो आने लगी। फर्स्ट ईयर में जब मैं BBA करने के लिए गया भुवनेश्वर, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था ब्रिजनाथ चौधरी, जिसका नाम है रैपर ब्रिजे। और रैपर ब्रिजे से जब मैं मिला, उसने मुझे बताया कि वो रैप करता है, वो 3-4 साल से रैप कर रहा है। और मैंने कहा वाह भाई, मुझे भी बता कैसा रैप करता है, क्या करता है। एंड आई वाज इंटरेस्टेड, बता क्या करता है तू। एंड सुना कुछ क्या चीज़ है, मेरे को जानना है भाई। आई नेवर मेट अ रैपर। एंड उसने मुझे सुनाया रैप, एंड आई वाज लाइक हाँ भाई मज़ा आ रहा है। एंड आई वाज, मेरे अंदर भी है, मुझे भी बहुत कुछ लिखना है। एंड बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है ये चीज़ें, मुझे भी ट्राई करनी है। जो चीज़ें हैं वो जो करते हैं वो चीज़ें मुझे भी ट्राई करनी है लिख के, कि इस तरीके से कैसे मैं भी लिख सकता हूँ क्या। तो वो होने के बाद मैं लिखा धीरे धीरे, पहले एकदम जैसे कि होती है सबकी शुरुआत। बहुत ही ख़राब था, पर धीरे धीरे राइटिंग थोड़ा बहुत डेवलप कर गया। अभी एक थोड़ा बहुत एक लेवल पे आ गया, एक बिगिनर रुकी, हल्का फुल्का रुकी लेवल पे है एक राइटिंग मेरी, जो कि अब भगवान का ब्लेसिंग रहा और मेहनत रहेगी तो आगे और थोड़ा सा मैच्योर होगा राइटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैप में। या जब जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको पहले यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग। आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या डिलीवर कर रहे हैं। एवरी वर्ड यू से हैज़ अ मीनिंग, आपको वो बिल्डअप करना है, वो मीनिंग बिल्डअप करना है। तो इसी थॉट के साथ मैं करता गया आगे बढ़ता गया। फिर सबसे पहले मुझे पता चला 7.5 भाई जो हैं शुभम भाई, शुभम दास, उनसे मुझे पता चला रैपर 7.5 से। वो एक वीडियो मैंने डाली थी, वो वीडियो थी रेबल 7 के रैपर हैं, वो भी दिल्ली से। उनका एक रेवोल्यूशन था 2019 का रेवोल्यूशन, उसमें मैंने वीडियो डाली थी। और वहाँ से 7.5 उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कहाँ से हो। उड़ीसा से ज़्यादा लोग, क्योंकि उड़ीसा में वो कल्चर है ही नहीं। उड़ीसा में कोई रैप नहीं करते, इतने लोग रैप नहीं करते। तो 2019 से अगर मैं मई की मार्च अप्रैल की बात करूँ, 2019 मार्च अप्रैल में बिग डील के अलावा लोकल रैपर्स बहुत ही कम, जाने माने तो कोई भी नहीं थे, कोई किसी को नहीं जानता था। अगर भी कोई कर रहा है तो वो कुछ 1000 व्यूज़ के साथ कहीं कुछ है, या उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक वो मूवमेंट टाइप सा नहीं था वो, ऐसा कुछ भी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा वाह थैंक्स भैया, आपने कांटेक्ट किया और मोटिवेट किया। और उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया कि एक उत्कल साइफर हो रहा है रसूलगढ़ में, यू शुड गो। एंड मैं भी जा रहा हूँ, साथ में चलेंगे। फिर वहाँ से मैंने कहा साइफर हो रहा है, कभी मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ लिखना, अभी शुरुआती में ही साइफर होगा। और साइफर यहाँ पे है कितने रैपर्स की हम लोग साइफर कर सकें, अरे ज़्यादा नहीं है, कुछ ही होंगे, कुछ करेंगे हम लोग साथ में, जितने भी हैं साथ में कुछ करेंगे। वहाँ से जो जर्नी है वो अभी तक की सबसे यादगार लम्हे उसी में मैंने गुजारे हैं। वहाँ पे मैं मिला उस्ताद भाई से, वहाँ पे मैं मिला शेरा भाई से, वहाँ पे मैं मिला MC टॉर से, वहाँ पे मैं मिला गुरुजी से, वहाँ पे मैं मिला मिस्टर डी से, वहाँ पे मैं और भी बहुत से बढ़िया रैपर्स के साथ मिला। वहाँ पे मैं रॉय के साथ मिला। और वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा एक साइफर वो हमने शुरू करी, और वो चली हमारी कुछ 1-8 घंटे तक, 2 घंटे तक चली। ज़्यादा लोग तो थे नहीं, 15-20 जन भी नहीं थे, 15 जन होंगे। उसमें से रैप करने वाले 10 जन थे और 5 जन हाइप मैन होंगे। और इसी तरीके से कुछ जब वहाँ पे हम लोग, लेकिन जब टाइम हम लोग को एक मोटिवेशन आया कि हम लोग 4 लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वाह भाई अब कुछ हो सकता है,
अब मैं अकेला नहीं हूँ, ये एक फीलिंग अंदर से चल गई कि मैं अकेला नहीं हूँ, जो भी है साथ में है, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन टेक अ स्टेप। तो हमने वो स्टेप लिया, हमने उत्कल साइफर रिकॉर्ड किया, हमने वर्ड्स लिखा, गुरुजी ने बीट बनाया, उत्कल साइफर आया। उत्कल साइफर के दौरान मैं और शेरा भाई के साथ हमने वो एक बहुत ही भयंकर वाइबिन हुआ। वहाँ पे 7.5 था, उनके साथ भी कोलैब है, गाने वाने आते रह गए। मेरे क्या पता था, मैं शेरा भाई के चैनल पे मैंने सबसे पहला गाना क्या पता था छोड़ा। उसके बाद जेनेसिस भाई सबसे एक बहुत ही मतलब कि जी-फाड़ रैपर है, डोप रैपर जेनेसिस भाई, उनके साथ भी कोलैब आया मेरा। और इसी तरीके से सारे लोगों के साथ गाने आते गए। अभी तक ज़्यादा गाने तो है नहीं यूट्यूब पे मेरे, गिन चुन के 3-4 गाने होंगे, और उसमें से एक असीमा पंडा के साथ गाना है, जो कि वो भी मुझे इसी तरीके से इसी दौरान एक मिला था। तो ऐसे एक मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है रैप म्यूज़िक में, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, बहुत सी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं, आपका एजेंडा बहुत कुछ हो सकता है। ये बहुत ही इसको मिसअंडरस्टूड और अंडर जज्ड चीज़ मैं कहूँगा रैप को। उड़ीसा में स्पेशली लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ढंग से समझ नहीं पाते हैं, अगर भी समझ जाते हैं बहुत ही ऊपर का ओवरव्यू रहता है, उसे एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट नहीं देख पाते हैं रैप का, या रैप कल्चर का, या हिप हॉप कल्चर का, जो कि एक हमारा मोटिव ही यही है। हम वो चीज़ लोगों के मन में जगाना चाहते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप गाड़ी दिखा रहे हैं, कि आप डिस कर रहे हैं, कि आप कुछ कर रहे हैं। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, यू कैन प्ले इट योर वे। आप जैसे हैं आप वैसे आप अपने आप को दर्शा सकते हैं। इफ़ यू आर अ गैंगस्टर, आप खुद को, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजरने वाली है, आप उसी तरीके से जेल उल जाके आपको अपनी लाइफ निकालनी है, तो आप बेशक आप कहिए। अगर आप बहुत ही एक प्रोटेस्टिंग आदमी हैं, तो आप सरकार के अगेंस्ट में आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, आप बेशक अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। रैप वो आपको हमेशा वर्ड्स देगा, आपको हमेशा वर्ड्स मिलते रहेंगे, और उड़ीसा में यही चीज़ हम लाना चाहते हैं, हम लोगों को एक देना चाहते हैं। यहाँ पे हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि हम बहुत ही एक्सप्रेसिव लोग हैं, हमारे बारे में लोग नहीं जानते हैं, हम बहुत ही एक्सप्रेसिव लोग हैं। हमारे राइटर्स को आप देखिए, हमारे पोइट्स को आप देखिए, हमारे जनता को आप देखिए, हम लोग हमेशा बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं, हम कभी अपने अंदर कोई बात नहीं रखते। इसीलिए ही इस जगह पे, इस स्टेट में अगर रैप आया, अगर रैप कल्चर आया और लोग उसे अगर एक्सेप्ट किए, उसे एक्वायर किए और उसे अच्छे तरीके से यूज़ किए, तो बहुत ही मेरे ख्याल से वंडर्स हो सकता है। और वही हम सबकी इच्छा भी है। तो यही बोल के मैं विदाई लेना चाहूँगा कि आगे जैसे जैसे दिन जाए, जैसे जैसे साल आते जाए, हम हो नहीं हो, कल्चर रहे, लोगों को उससे लाभ मिले, लोगों को एक उम्मीद मिले, लोगों को एक मनोरंजन मिले, और मनोरंजन के साथ, उम्मीद के साथ उन्हें उससे भी ज़्यादा कुछ मिले, जिससे लेके वो अपने लाइफ में मोटिवेट हो सके, जिससे लेके वो एंथुजियास्ट हो सके, खुद को एंथुजियास्टिक फील कर सके। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा। My name is Abhishek Acharya, aka AVS60. Basically, I'm a rapper and I produce beats for Desi Squad and DFO Gang. I'm from Sambalpur, 768004 Odisha. और आज इससे घर चलाने की It all started when I was in 9th class and मैं तब म्यूज़िक से बहुत जुड़ा था। मेरे को सुनना बहुत पसंद, EDM से लेके बॉलीवुड से लेके पॉप, रैप भी थोड़ा बहुत। हिप हॉप से उतना मैं कनेक्टेड नहीं था पहले। तो एक दिन मैंने मेरे करियर को लेकर अगर कोई पहला स्टेप था तो वो था, इट वाज मी सर्चिंग फ्री बीट मेकिंग सॉफ्टवेयर इन गूगल। तब तक मैं वर्चुअल डीजे में रिमिक्सेस वगैरह बनाने का ट्राई करता था। आई वाज यूज्ड टू द डॉ थिंग। तो मैंने पहले बॉलीवुड सॉन्ग्स के इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बनाने की कोशिश की, मतलब एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंटल कैसे बना लूँगा। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन का तो नॉलेज नहीं था, लेकिन तब मैं बनाता था, मतलब वो इंस्ट्रूमेंटल वर्जन नहीं होता था क्या, जिसमें कोरस का मेलोडी रहता था उसकी जगह। तो ऐसे बनाते बनाते मैं हनी सिंह और रफ्तार इन लोग के रैप ट्रैक्स वगैरह के इंस्ट्रूमेंटल जब बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे को वो टिपिकल
हिप हॉप साउंड से प्यार हो गया, मतलब वो जॉनर से मैं चिपक गया, पता नहीं कैसे मैं उसके बाद वही बनाने लग गया। तो सीन ये हुआ और आने लग गया म्यूज़िक। उसके बाद मैं खुद से भी कुछ बनाना शुरू किया, थोड़ा एकदम हल्का फुल्का प्रोडक्शन। उतना तो मैं नहीं था सही। तो एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था तो मैंने देखा जैरम बिया का पोस्ट, एक रैंडम स्पॉन्सर किया था उन्होंने, आई हिट भगवान का, कि उन्होंने एक रैप ट्रैक डाला था। तो मैं शॉक हो गया, भाई संबलपुर में रैपर है, बाप रे। तो मैंने उनको मैसेज किया कि नहीं भैया आपका ट्रैक बहुत सही लगा, आई एम ऑल्सो इनटू म्यूज़िक एंड स्टफ, तो मैं मिलूँ क्या? तो बोले आ जा। तो मिले हम लोग, वी शेयर आइडियाज़। तब तक ग्रुप में सब यूट्यूब ट्रैक्स यूज़ करते थे, बीट प्रोड्यूसर उतना नहीं था कोई, और मैं भी कंप्लीट बीट प्रोड्यूसर नहीं था, लेकिन खुद से कुछ भी थोड़ा सा करना डज मैटर। मतलब एटलीस्ट तो पहले की बीटें फुद्दू थी, बट पूरा ट्रैक ग्रुप से ही निकला था, समझे ना। तो मेरे आने के बाद मैंने उनको सैम्पल दिखाए और उनको सही लगा, तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्रैक्स। मैंने उनके लिए बीट बनाया और एक दो ट्रैक के बाद एक दिन एक मीटिंग में मैंने उनको अपना एक क्रश के ऊपर लिखा 10th क्लास का रोमांटिक सॉन्ग बनाया, जो कि डम फक गाना था। लेकिन उन्होंने अज्यूम किया कि मेरा लिखने का पोटेंशियल था, तो उन्होंने मेरे को पुश करा, एजे पाजी और जैरम बिया ने मेरे को पुश करा और बोला कि भाई तू खुद पे क्यों नहीं लिखता, तू लिखना ट्राई कर, जैसे लिखना भी हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को देसी हिप हॉप के आर्टिस्ट वगैरह सुनाए और हिप हॉप पूरा यूनिवर्सल आर्टिस्ट वगैरह सुनाए, टूपाक, जेजी, एमिनेम, जे कोल, 50 सेंट और मॉब डीप, और इंडिया में डकैत शेडी और वो सीधे महोत्सव मेरे को सुनाया उन्होंने। लाइक एक अलग ही लाइफ स्टाइल वाली चीज़ है, मतलब लोग अपनी स्टोरीज, अपने लाइफ के इंसिडेंट्स, अपनी थॉट प्रोसेस कितने क्लियर में बता रहे हो, हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं सही, तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेंटेंस फॉर्मेशन। मैंने राइम्स फ्लोज पे, मतलब मैं बचपन से बीट का आदी, तो मतलब मैंने मार्चिंग, मैं RSS में मार्चिंग बैंड में हेड ड्रमर था। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे को पियानो क्लासेस में बिठाया था। वो लाइक मेट्रोनोम बस नहीं होता, मैं बीट्स से, पॉकेट्स वगैरह से मैं पहले से थोड़ा वाकिफ़ था, तो फ्लोज पे काम किया मैंने। आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग माई सेल्फ। और उसके बाद सीन ये हुआ कि लाइफ थोड़ा सा एक फक्ड अप मोड ले गया। सो कब सीरियस हो गया चीज़ों को लेके, कब मैं उन चीज़ों को गानों के थ्रू बताना शुरू करा, जान नहीं पाया। तो फिर भी उतना कोई समझ नहीं रहा था, मतलब करियर पेस में नहीं था। काया कहाँ से पड़ती मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार जैरम बिया का ऑफर आया संबलपुरी में रैप करो उनके, तब तो वो भी हिंदी में करते थे। तो उन्होंने एक गाना डाला राउडी हीरो पर, उसके बाद उनको संबलपुरी में लिखने का शौक चला। उसके बाद उन्होंने हिंदी ड्रॉप करा। उनको सब कोई बोल रहे थे बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ। आई वाज लाइक क्यों 10 लोगों के बीच जाके कंधे से कंधा लगा के रश करना, जब खुद का स्टेट हिप हॉप मैप में रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ ढंग से। तो उसके लिए हसल करना हमने प्लान किया। तो जैरम बिया ने जब संबलपुरिया बाबा डाला, उसके बाद ओए ओए डाला, उसके बाद बैस बैस अलग डाला, विश्वास नहीं करोगे हम लोग 10-20K में अटक गए थे मैक्सिमम। 20K तो पिछले महीने मेरे हिंदी ट्रैक में गया। नंबर्स की बात नहीं है, बट स्टिल लोगों का पसंद करने के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो संबलपुरिया बाबा 100K चीरा। उसके बाद लोग पहचानने लग गए इस साइड, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बलांगीर, झारसुगुड़ा साइड लोग रैप सुनने लगे बाबा को। बैस बैस अलग मिलियंस उठाए। तो उसके बाद हमको शोज़ मिलने लगे। तो वहाँ पे बाबा जब जाते थे तो वो इंसान, लव यू जैरम बिया, कभी नहीं भूलूंगा, वो इंसान मेरे को स्लॉट देता था और वहाँ पे मैं रैप ट्रैक करता था, कंप्लीट रैप करने लगा। लोग हिप हॉप पसंद करने लगे। उसके बाद मैंने उत्कल सैफर सुना। उत्कल सैफर के उस्ताद भैया ने जैरम बिया को बोला कि ऐसा ट्रैक करते, उसमें 10 रैपर थे। और मैंने जब सबको सुना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उस लाइक कंप्लीट सीन रेडी है, इतने सारे आर्टिस्ट और हम लोग बस एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इट्स लाइक बहुत शर्मनाक बात है। तो मैंने जब सबको जाना, सबसे बात की, ये लॉकडाउन में तो सब बहुत क्लोज हुए। अभी तो ट्रैक्स भी आ रहे हैं, मेरा और रोजा भैया का एक ट्रैक आ रहा है और बहुत कोलैबोरेशन के प्लान्स चल रहे हैं। मैं सबका काम देखा। मैं लाइक हम लोग पहले से कम्युनिटी है, बस एक दूसरे को जानते नहीं है, सब अपने अपने। तो सीन ये हुआ कि एक दिन उस्ताद भैया ने रियल बात चैलेंज करके डाला चैलेंज। मैं शॉक हो गया जब उसमें 40-45 प्लस सबमिशन थे। और लाइक बहुत सही, ये सीन ऑलरेडी एक सीन है। बस लोग, सच बात है, ट्रैक्स
नहीं डालने तक का हम लोग कुछ नहीं है, मैं भी नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ सम पर्सनल इशूज़ हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो फ्लो मेंटेन। मतलब मुझे एक गाना डाल के रह नहीं जाना, और मतलब अभी से नॉट डूइंग इट फॉर मनी, नॉट डूइंग इट फॉर फेम बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। I mean, जब वो जैसा बची, नॉट डूइंग इट फॉर मनी, नॉट डूइंग इट फॉर फेम बोल के हम अपना पर्सोना बैड एस दिखा सकते हैं, बट यू नो इनिशियल स्टेज में वी हैव टू डू समथिंग टू मेक इट ग्रो, यू नो मार्केटिंग इज़ अ की। मतलब मैं कोई जॉब ये बोल के नहीं कर सकता कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर सैलरी, यू नो। आई मीन चाहिए चीज़ें ग्रो करे, वरना वो चाहे एक अप्रिसिएशन हो, चाहे वो किसी का अप्रोचल हो कोलैब के लिए, चाहे वो एक पेमेंट क्यों ना हो, चाहे वो मिलियन व्यूज़ क्यों ना हो, वो तुम्हारे नहीं रुकने का एक सिग्नल है कि नहीं भाई करते चल, इसमें फ़ायदा है। सो एंडिंग नोट में मैं यही बोलना चाहूँगा, हर आर्टिस्ट बैड एस काम कर रहे हैं, शाउट आउट टू ईच एंड एवरी आर्टिस्ट दैट आई नो। और जितने लोग मेरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब जगह ऐड हैं, सब कोई ताबड़तोड़ काम कर रहे हो, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये सीन बहुत सही वे से ग्रो करेगा। और मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही, कोरोना स्टफ क्लियर होने के बाद सब मिले, साइफर्स हो, बैटल्स हो, इंटरेक्शन हो, नॉलेज शेयर करें, नॉलेज गेन करें। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। AVS 60 साइनिंग आउट, और शराटू, अर्बन उत्कल, अर्बन लोफर, त्रिकालदर्शी, देसी स्क्वाड, हर लेवल, हर आर्टिस्ट, और अर्बन लोफर, थैंक्स फॉर द ओडिशा हिप हॉप फेस्टिवल थिंग एंड ये इंटरव्यू वाली चीज़। लॉट्स ऑफ लव। AVS 60 साइनिंग आउट। सीन बहुत सही तरीके से ग्रो करेगा। Guneet aka RGK. Many of you know me. I'm an R&B trap artist, pop music producer, and a sound engineer. It all started when I was in my college days. One of my friends made me hear a Tamil song, Edir Nichal by Anirudh, Yo-Yo Honey Singh and Hip Hop Tamil. So, as a South Indian, I very much liked that song, and the groove of that song, you know, really hit me hard, and I got really attracted to that vibe. So back in those days, I used to listen many Telugu artists, many Punjabi artists. In Telugu, I used to listen SS Taman, Devshi Prasad, and in Punjabi like Yo-Yo Honey Singh, Dr. Zeus, Jazz Dummy, Jazzy B, and Punjabi MC. You know, many more artists like this. So that desi vibe with that urban touch, you know, really inspired me, you know, really got me into this thing basically. Those days I used to have a Sony Vaio laptop in which there was a pre-installed software known as Acid Pro. So what I used to do is I used to import those kind of songs into the project. I used to chop those samples, chop those instruments, and I used to add layers of kick, snare and hi-hats, do a basic kind of rhythm. So that's how it started of producing music. Once I had attended with a few of my friends to a band event here in Bhubaneswar, and there I got introduced to a band called the Saints of Sodom, which right now is the Saints. I met them backstage. I spoke to the members of the band. They were really inspiring, you know, they were really motivating, and we got to know each other from there. And I used to go to their jam sessions, you know, used to sit there, used to, you know, jam together. So seeing my abilities, they took me into the band as a rap artist, you know, as a synth player and beat player. Once we went to a studio to record our own song, our own composition, and there was a rap part in the song. I recorded my vocals. The guy who was recording the song, what he did was he added the same effects, the delay and the reverb of the main lead vocals into my rap vocals. So that time I didn't have that technical idea of sound design. So but I felt a little bit awkward, you know, because that sounds so roomy, so you know, echoish kind of thing. So I said him to reduce that levels, and at that moment I thought of, you know, I should design my own sound. I was in BTech first year when I thought of dropping from engineering, because engineering was not really my forte, and I wanted to pursue music as my full-time career. So I tried to convince my parents regarding this, and
in the beginning it was a little bit difficult, but as they have seen me perform with the band, they have heard few of my projects, so somehow they got convinced, and they gave me the permission to pursue my passion as a career. So I went to Pune to complete my graduation in sound engineering, and it was a 3-year course. And trust me, those 3 years were the best 3 years of my life, because I learned a lot about sound design, studio ethics, music production, and many professionals from the industry like sound engineers, DJs, record producers, everyone took our lectures at the time. And another thing is that I got the best friends from the same field, and that is a really blessing for me. I have worked in many projects, I have worked with many bands, I have recorded their songs, mixed their songs, and I just want to say that nothing is impossible in this freaking world. You just need to be consistent, you just need to be dedicated, you just need to be hardworking. At the end, I just want to say that I have been following and seeing many artists from Bhubaneswar, and the hip hop scene in here is going too good. And I just want to give shout out to Urban Loafer and the Odisha Hip Hop Festival. Check, it's your boy MC Tor. और थैंक यू सो मच अर्बन लोफर प्रोडक्शन ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हाँ, अपने बारे में अगर कहना स्टार्ट करूँ तो आई स्टार्टेड रैपिंग सिंस अ ईयर और मोर, एंड इट्स ऑलमोस्ट 1.5 years। और हाँ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी एक साइफर से, जो कि ऑर्गेनाइज्ड बाय उस्ताद भाई भुवनेश्वर में ही। और उसमें हम सारे लोग, सारे फ्रेशमैन, मी, छोटा ओझा, शेरा भैया, उस्ताद भैया और मिस्टर डी, हम सब लोग गए थे वहाँ पे। डीजे इज ए फाइन, हम सब लोग गए थे वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई वहाँ से। और धीरे धीरे हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे स्टेट में भी इतना अच्छा हिप हॉप करने वाला आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे बीट प्रोड्यूसर्स हैं, इतने अच्छे रैपर्स हैं, इतने अच्छे डांसर्स हैं। धीरे धीरे हम लोगों का माइंड खुलने लगा, एंड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर। और उसके बाद हमें काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। और मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला उसके बाद। ब्लस्टर भैया, जो अभिनव भैया फ्रॉम अर्बन लोफर प्रोडक्शंस, उनके साथ गाना आया मेरा शब्द प्रहार, दैट वेंट लाइक मैड। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि ही गेव मी दैट प्रोजेक्ट। और हाँ, फिर चीज़ें चलती गई और थिंग्स गेटिंग मोर हॉटर। जब ओडिया रैप सॉन्ग जब टीवी पे बजा, न्यूज़ पे आया और सब लोगों ने पहचानना शुरू किया, काफ़ी लोगों ने पहचानना शुरू किया, उसके बाद से फिर तो हम लोग बहुत सारे प्रोफेशंस में काम करते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में काम करते हैं। हम लोग ज़्यादातर टाइम अपने प्रोफेशन को देते हैं, क्योंकि हम लोग को मनी वहाँ से मिल रहा है। सच बताने जाऊँ तो अभी तक अर्निंग का सोर्स ये है, अर्निंग का सोर्स नहीं है, बट हाँ
हम लोग ये सारी चीज़ अपने पैशन के लिए कर रहे हैं, डूइंग फॉर हिप हॉप। हम लोग को हिप हॉप एस्टेब्लिश करना है अपने शहर में, अपने स्टेट में, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर द लव फॉर हिप हॉप। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारे एक छोटे से इनिशिएटिव से स्टार्ट हुआ था। लाइक जब मैं स्टार्ट किया था बैक इन 2017, मुझे शायद पता नहीं था कि देयर आर सो मेनी टैलेंटेड रैपर्स, सो मेनी टैलेंटेड आर्टिस्ट हु आर डूइंग दिस शिट। लाइक मैं लिटरली पागल हो गया था जब मैंने इतने सारे आर्टिस्ट को हिप हॉप करते हुए देखा, क्योंकि आई थॉट आई वाज द ओनली वन हु वाज डूइंग दिस, बट माय आईज गॉट ओपन और मैंने काफी सारे डोप आर्टिस्ट को देखा, मैंने सुना उनको। शाउट आउट टू बिग होमी 7.5, ही इज एब्सोल्युटली किलर। एंड सब लोग अच्छा कर रहे हैं सीन के लिए, और होप कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, साथ देकर, हमेशा एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ते रहें। एंड बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हो जाए, वी शुड स्टैंड टुगेदर, बिकॉज यूनिटी में ही पावर है। अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, अगर हम लोग साथ खड़े तो उसको मुकाबला कर सकते हैं। यही उम्मीद करूँगा अपने रैपर भाइयों, अपने डांसर भाइयों से कि हाँ, हमेशा यूनिटी बनाए रखें और साथ में जाए। क्या बोलते हैं? साइनिंग आउट, सब बॉय एमसी टॉर, पीस आउट। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं कृष्णा मिस्त्री AKA उस्ताद UST AAD। मेरे को एक उड़िया रैपर के हिसाब से लोग जानते हैं। मैंने रैप करना 2010 से चालू किया है। मैं पहले हिंदी में लिखता था और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं अपने मदर टंग में करूं, जो कि उड़िया है। तो उड़िया में मैं अभी रैप कर रहा हूँ, जो कि लोगों को अच्छी भी लग रही है, लोग पसंद भी करते हैं। और काफ़ी सारे नए लड़के भी आ रहे हैं कि उड़िया में रैप करने के लिए, जो कि कुछ सालों तक यहाँ सीन में नहीं था। आजकल बहुत सारे लड़के उड़िया में रैप करने लगे हैं और मैं यही चाहूँगा कि आगे से आगे और भी लड़के आए। और मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जो भी लड़के हैं अपने, तो उनको कि अपने सोलो प्रोजेक्ट के अलावा भी सीन में कैसे बढ़ावा हो और सबको मिलजुल कर कैसे काम करना चाहिए। यहाँ हिप हॉप को कल्चर को लेकर हिप हॉप को बड़ा करने के लिए जो भी करना वो सब करें, बाकी तो सब चलती रहती है। तो मैं यही चीज़ें बोलना चाहूँगा आपको। और जो भी है, अपना तालाब पे आप काम कीजिए और अपने क्राफ्ट को और भी साथ कीजिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा इसका। और मैं को यहाँ पे उड़ीसा में हिप हॉप सीन के लिए जो भी बन सके आप कीजिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, हमेशा जरूरी रहेगा। हिप हॉप जिंदाबाद। Namaskar, I'm Abhinav. People know me as Bluster, some know me as Juggernaut. So I am into dancing, I'm into rapping. So I basically started off my journey in 2010, where I was interested into drum dance, and then I learned different styles. I did some TV shows, some corporate shows, and I also happened to learn different styles over the period of time. And last year I happened to represent India at Dusseldorf, Germany at World Drum Finals. It was a huge experience for me, after which I decided to continue a long-term dream that was of getting into rap. So I took a trial with a rap cypher, and then on my first release, that was Sabda Prahar, it became viral and was loved by the Odia audience. Over these years,
I have seen hip hop grow at large in Odisha. So, like the number has really multiplied of the artists involved in the scene right now, and a lot of people are learning and growing. A lot of people are sharing their experiences, which is really great. And I hope to see more and more number of artists coming out there and showcasing their art, achieving different heights, and after all of that, keeping the love, one love, hip hop. Hi everyone, my name is Naham Raj and everyone knows me as Guruji. Ever since I was a teenager, I've been passionate about music, and it's all about passion. And you know, when your passion becomes your career, your life changes, and that's what I've been doing since. I've been associated with the Urban Utkal since 4 to 5 years, and we've been doing an enormous job in bringing out some young talents from the state itself. And you know, my greatest achievement will be giving an opportunity to the underrated artists of my state. People have definitely an opportunity to shine, and that's what I'm aiming forward to. Thank you. देख माइक लेके गाऊ छे जे आरएम बावा गोड़ थीवा धरती नो आसमान के छीवा लोक ने थीले भी मेहनत कहीं जीवा लेकिन नहीं था ये पिला मार्केट खावा बाबा राम राम जय महाकाल and JRM Jyotirranjan Mohanty and 2019 January 9 रे पूरे song drop ହେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବା ବୋଲି जेन song ओडिया and ସମ୍ବଲପୁରୀ rap ର mix up थिला and after that song मुई ସମ୍ବଲପୁରୀ rap ଉପରେ properly ध्यान देली कि focus करी काम करी तेता बस एटा माने कहसो माने सपोर्ट सबको करो दिल रो सपोर्ट करो माने कि from day one to still now and from childhood to मोर बावा से मोर संगे गुड़े पिला अछन से गुड़े से जन केतेटा गुड़े पिला जन अछन से मन को मोर गैंग कहस बावा माने कि ई माने मोर सब बेला मोर संगे रहिजन लाइक स्वाधीन मेहर आइची बावा हमर पॉपर समर्पया बावा पॉपर तांको रिसेंट सिंगल सॉन्ग डेब्यू ड्रॉप करिजन सैड सॉन्ग तो दे केनता बुझाबी एंड मोर भाई लाला भी असाय तो संबलपुर जिला बाबा आइची संबलपुर जिला मोर जेआरएम बाबा ऑफिस हेलो एवरीवन हम अजय दालवा आकार है पर जैसे कथा 2015 रे जेतेला मोर क्रू स्टार्ट करनु मुई जेआरएम और किछि पिला मिसी करी नेम एज देसी स्क्वाड से टाइम रे संबलपुर रा मोर फर्स्ट हिप हॉप ग्रुप थिला हिप हॉप नै कर दई की तो देन मोर ऑफिस थिला अठापल्ली रे हम अठापल्ली ऑफिस आसुथुलु डिस्कस करूथुलु रैप म्यूजिक अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काना अछि जो हम आर्टिस्ट मन करथा मिसी करी काना हुआ अछि सब से में डिस्कस करूथुलु एंड तारपरो हमर हिप हॉप ऊपर हमर रैप ऊपर काम से दिनो हमर कंटिन्यू होछे तब चल देन दिस इज कोड फर्स्ट प्रोजेक्ट हमें ड्रॉप करू जेआरएम रो आई हेड भगवान एंड आई हेड भगवान सॉन्ग गुडे मोर रियल लाइफ रो किछि इंसिडेंट किछि मोर रियल लाइफ रो प्रॉब्लम डेडिकेटेड टू समवन स्पेशल देन धीरे धीरे हमर संगे वेरियस रैप आर्टिस्ट माने जॉइन हले लाइक एविया 60 मिलियन इन्वेंटो रैप नाइट देन म्यूजिशियन भी हले फ्लोरेंस चार्मिंग सिंह सौरभ दास एंड मेनी मोर तो हमें प्रोजेक्ट्स माने कंटिन्यू करनु बाय प्रोफेशन समस्त अलगा किछ ना किछ करूछन बट बाय प्रोफेशन माने बाय पैशन म्यूजिक भी बहुत टाइम दोछु हमें आइरा आके कंटिन्यू करू भी थिनु जिनिसटा के आ फिलहाल तो आसी जे केतेटा रास्ता रे भी अछि आ जेतकी भी धमाका आवा दिस इज कोड With the launch of Rap Tournament judged by Ustad and Saresat in Odisha Hip Hop Festival, Odisha saw a new bunch of budding rappers, and we will continue to tell the stories in upcoming diaries. Till then, Hip Hop Zindabad, Jai Jagannath. Odisha Hip Hop Festival, Khela Olga Prakar.